and I think Dr. Saima is going to invite you there. इंशाल्लाह लोग आ जाएं, 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं. First of all, thank you very much for being here. And this session is especially designed for you all, especially for your copyright, because sometimes if you are working on a product or service, and if you are selling into the market, but after 1 or 2 years, maybe someone else come up with the same product and the same thing, and you want to claim that no, it's mine, this is fair. So this session is basically designed for the copyrights, trends, and those things which you know need to know, especially for your integrity and which is your especially which you have designed solely for you. So inshallah in 2 or 3 minutes we'll start, and I will in the meantime also hand over to Mr. Ismansa. He's the head of the startup committee of the Pasha, which is the special initiative, and all the things behind the guns, especially Zen and Tayyab from the Pasha Secretary. They're from Lahore, and Ms. Joanna and all our startup members like Umar, and we have, I can see the faces over here as well. So inshallah, 2 or 3 minutes, Dr. Saima will start this session. In the meanwhile, Sir Mansa, if you would like to add something, so please add on, and then we will start the session, inshallah, in after 4 or 5. जी रिजवान भाई, your voice was not very clear, so please check. So first of all, I would like to thank Ms. Saima and all the participating members for joining this session. I'm sure this will add a great value to our member base. And my name is Usman Akbar. I have been heading Pasha Startups Committee from last 1.5 year. And as Mr. Rizwan has already told us about, like, we are around 11 to 12 members. So we are trying to like bridge a gap between the startup and the Pasha services based company. And our main goal has been how to transition from services to startup for a long time. And as you know, the that AI is just changing everything, so we need to adopt this change, and we can't rely on services alone to prosper in the future. So I think we should start the session. Please, Mr. Rizwan, please start the session. We can't hear you, Mr. Rizwan. We can't hear you. Okay, can you hear me now? I think now I'm audible, right? Yes. Okay. Yeah, I stopped my video, maybe something about the connection. So we will start our session. Simon Wall is here. She is from the IPO. She had a very good experience, especially in the Bitcoin designs and the copyrights as well. So she did head us, and she will just first give a presentation, and then afterwards we will have a Q&A session that whatever thing or strictly for your product or service want to get registered in form of the copyrights or a trademark or a patent in Pakistan and not in Pakistan, but the IPO and the wider organization. So she will let you know. So without any further delay, I hand it over to Ms. Saima. Thank you so much. Thank you, Rizwan Saab. Am I audible to everyone? Yes. Okay, Yes, thank you. रिजवान साहब की आवाज थोड़ी वो नहीं थी clearly audible, so I think I should introduce my name is Saima, and I'm intellectual property organization since 2006. Basically, I'm senior patent examiner, and today I'm here to let you know about different forms of intellectual property and how these different forms of intellectual property are relevant to your business as a startup. So if you could allow me, Usman Saab, to share my screen. Yes. So actually, I'm not controlling the session, Zen.
Could you Okay. please जी look जी at जी this? Please allow me. So who is the audience of today's session? आपके Okay. startups हैं ये? No, actually, as you might know, that Pasha is IT Industry Association, and we all of our members are mostly services-based company. Like they might be working in product, but they are majorly services-based company. And for this Okay. session, we have rolled out invite in our main groups. Like we have few groups like nationwide, where all the CEOs of all the companies are present. So we have invited them to become part of this session, and they are actually not startup. Most of them will be services based company, but they will have some products in the shelf. Maybe they have launched it or not yet, but their goal will be to like get IP information and all the challenges that you will share today. So Okay. all the audience is mostly C-level audience, CXO, All right. CTOs, CEO, CIOs, those sort of people. Okay, fine. So when you say that they are services based, so I think they are providing, I mean, online services or online, I mean, businesses they are dealing in. Yes, so mostly they will be providing services and solutions to the US, Europe, UK, and the Gulf states, including Great. the Australia. So we have a large member base that is providing solutions and services to the whole world. And the main concept is that the engineering talent is present in Pakistan, Right. and they are selling globally. So they are True. not mostly they will not be like simple freelancers, because for becoming Pasha member, there is some criteria that you have to pass, and for that you have to be have a registered company and some headcount and some other like criteria is there also. So I think the Pasha is representing around like 80% of the Pakistani export. Like whatever figures you see from the Okay. IT domain, export domain, so most of them will be Pasha members. All right. All right. So thank you so much. Actually, just before starting the session, my little apologies. Actually, today my internet connection in my office has been discontinued by NTC in the morning, and I have made an ad hoc arrangement for this session. And my apologies if my voice lost somewhere, but hopefully we would make it. Let me share my screen. Okay. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, fine. So let's start. I think the purpose of today's session is that at least after this session, the audience would be enable enough to identify different forms of intellectual property, and how different forms are relevant to their business, and how they can use different forms of intellectual property to protect their intellectual assets and services and products. So if my audience can respond to it, I mean, what do you say? What is the most valuable asset of a startup or a company? Now, most of maybe the time somebody. it's IP. IP, okay. Yes, It's the idea about building the products. true. Yeah, initially it was, I mean, 2-3 decades ago, mostly the physical assets, the tangible assets, आपके finances, आपका infrastructure, human resource, ये सारी चीजें, these things were important for the business, आज भी हैं. But with the passage of time, the intangible assets, I mean, the value of your product, your ideas, your technologies, so all these things have contributed a lot. और अब ये एक मेन ड्राइवर हैं
for the success of any business. Yeah, true. So in this presentation, I would basically cover different forms of intellectual property and how intellectual property is being managed in Pakistan. और क्यों ज़रूरी है नए बिजनेसेस के लिए और इवन एस्टैब्लिश कंपनीज के लिए भी. और in the end, I would give a few tips. Maybe you can say, some strategies which I would like to share with the CEOs and entrepreneurs. So different forms हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. आपने इनमें से सुना होगा शायद ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, industrial design, geographical indication, secrets, plant breeders' rights. So basically, these are different forms of intellectual property जो कि established हैं, which are secured by the companies to protect their products and services and their good name in the market. बेसिकली समटाइम होता ये है कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप एक आईपी राइट लेते हो, कभी दूसरा लेते हो, बट यूजुअली एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे आईपी राइट्स कलेक्टिवली जो हैं सिक्योर किए गए होते हैं. इफ आई मे आस्क यू, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन दिस प्रोडक्ट? I mean, this is iPhone का ये एक मोबाइल वो है, सेल फोन है. कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसमें? कैन यू आइडेंटिफाई एनी? इनका डिजाइन स्पेसिफिकेशन या यूआई. यस, ट्रू, इसका डिजाइन. So tab bar is also a iPhone rights, patent rights on the tab bar of this screen. Mm-hmm. So Okay. I think iPhone has this IP rights of this feature tab bar. All right. Okay. Okay, great. इसको एंड में जब हम इन सारे आईपी राइट्स को देख लेंगे एक बार, इन दी एंड इसको डिस्प्ले करेंगे और फिर हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितने राइट्स हैं. ठीक है, तो हम दोबारा इस पे आते हैं. So I would now move one by one from one right to the other. आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स हर राइट की बताते हुए, और एंड में आप लोग खुद इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने राइट्स हैं. So सबसे पहले पैटेंट्स. पैटेंट इज माय सब्जेक्ट एंड माय स्पेशलिटी. एंड ये एक छोटा सा जो डिवाइस हम यूज करते हैं, इसके अंदर लुक एट इट, कितने ज्यादा पैटेंट्स हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, इसकी डिफरेंट इनोवेशन, इसकी डिफरेंट जो भी इसमें अभी जैसे किसी ने कहा इसके डिजाइन के पैटेंट्स हैं, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, टच स्क्रीन है, कैमरास हैं, मे बी हर साल कुछ ना कुछ, बल्कि सालों पे नहीं, इनोवेशन इज सो रैपिड इन दिस इंडस्ट्री के आई मीन महीनों में शायद ऑब्सोलीट हो जाती हैं चीजें और नई आती हैं. इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पैटेंट्स हैं इस फील्ड ऑफ इनोवेशन में. सो पैटेंट है क्या एक्चुअली? व्हेन वी से पैटेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कंपनी और द इन्वेंटर. कि इन्वेंटर जो है वो अपनी इन्वेंशन डिस्क्लोज करेगा एंड इन रिटर्न द गवर्नमेंट वुड गिव him an exclusive right to use his invention in the market. So this is basically how patent works. So in order to get patent protection, your invention should fulfill certain criteria, like it should be novel, it should be inventive and industrially applicable. और इसको मैंने बहुत समराइज करके मैं सिर्फ फंडामेंटल्स आपको बताऊंगी, क्योंकि दीज आर होल सेपरेट सब्जेक्ट, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया. बट एक ऑन द होल एक आइडिया आपको देने के लिए, these three criterias are examined by the patent office. And then subject matter, हमारे पास हर साल we receive applications from every field of technology, including आपकी ICT. these are the products. इसमें pharmaceutical products हैं, इसमें आपके genetically modified organisms हैं, devices हैं, इसके अंदर novel processes हैं, pesticidal compounds है.
every field of technology from shoe horse to avionics. So yes, we receive applications across the technology. देन पैटर्न की लाइफ जो है 20 इयर्स तक होती है. इसके बाद आपका पैटर्न जो है वो पब्लिक डोमेन में होता है. इसके बाद कोई भी आपका पैटर्न जो है वो यूज कर सकता है. बट वंस पैटर्न इज ग्रांटेड इट एग्जिस्ट फॉर 20 इयर्स. और एक और यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन है कि यूजली व्हाट वी से कि अगर मेरा पाकिस्तान में पेटेंट है तो आमतौर पे कहा जाता है ओके मेरा यूएस में पेटेंट है, या ये कि मेरा एक इंटरनेशनल पेटेंट है. सो लेट मी क्लैरिफाई, ऐसा कोई टर्म नहीं होती इंटरनेशनल पेटेंट की तरह. ठीक है, पेटेंट्स आर ऑलवेज टेरिटोरियल. If you want to do business in Pakistan and you want to protect your product or your process, you have to seek patent protection in Pakistan. और अगर आपको चाइना में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, यूएस में करना है, जहां पर भी आपकी मार्केट है, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को उस स्पेसिफिक मार्केट में जाके प्रोटेक्ट करना है. और ऐसा भी होता है कि एक टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है लेकिन दूसरे कंट्री में प्रोटेक्टेड नहीं है. लेट्स से एक टेक्नोलॉजी यूएस में खाली प्रोटेक्टेड है, तो पाकिस्तान में उसको यूज किया जा सकता है बिकॉज दिस इज नॉट अंडर पैटेंट प्रोटेक्शन. सो दिस इज हाउ पैटेंट सिस्टम वर्क्स. आई मीन इट इज टेरिटोरियल. पैटेंट के लिए एक मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवाइस है कंपनीज के लिए भी, इन्वेंटर्स के लिए भी, आई मीन बी क्विक टू प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन एंड फाइल अर्ली. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना होता है, मे बी किसी ट्रेड शोज वगैरह में, या ये कि आपको शेयर करना होता है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने पार्टनर्स के साथ, कमर्शियल पार्टनर्स के साथ. सो बट बी केयरफुल, आप पेटेंट पहले फाइल कर दें बिफोर डिस्क्लोजिंग इट विथ एनीवन. सो क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेंटर कम विद द इन्वेंशन और उसने खुद से ही वो इन्वेंशन पहले से डिस्क्लोज की होती है, और फिर उसका अपना डिस्क्लोजर जो है उसके अगेंस्ट यूज होता है, और that's why he can't protect his invention. So whenever you invent something और आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, बी क्विक और आप जल्दी से पेटेंट ऑफिस में जाके उसको प्रोटेक्ट करें. Another strategic decision जो कि लेते हैं बिजनेसेस वो ये है कि कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपको प्रोविजनल करनी है या कंप्लीट करनी है. इसको मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं करती, बस ये एक जस्ट आई वांट टू लेट यू नो कि एक ऑप्शन है. वैसे तो पेटेंट एक बहुत टेक्निकल लीगल प्रोसीजर है, इट नीड्स टाइम. इसमें आपको टेक्निकल राइटिंग है, समटाइम आप लीगल अटर्नीज की भी सर्विसेज लेते हैं. बट यस, अगर आप को क्विकली, आई मीन देयर इज एन अर्जेंसी, आपको अपनी इन्वेंशन किसी के साथ शेयर करनी है, अपने कमर्शियल पार्टनर के साथ, या आपको डिस्क्लोज करना है, उसको कहीं डिस्प्ले करना है, आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है, तो आप क्विकली प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. सो देयर इज नथिंग लाइक प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन होती है. ये बहुत ही क्विक होती है, बहुत थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज के साथ आप इसको फाइल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यू हैव 12-month period, आई मीन 12-month period in which you have to file your complete application. So is usually what inventors do, they file their provisional application, then they seek 12-month period, and during that period they file their complete application. So this is how usually they proceed. Then another type of IP right, which is known as trade secret. Trade secret कोई भी valuable information जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर योर बिजनेस, उसको आप एज अ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट समथिंग एज अ ट्रेड सीक्रेट, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट पे ही पड़ी हुई है, या ये कि वो आपके एम्प्लॉयज को पता है, या ये कि वो बहुत कॉमनली अवेलेबल है. सो इट शुड बी सीक्रेट. First of all, it should be secret. Then it should have some economic value, some business value.
जो कि आपको एक competitive edge दे सके in the market. एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है ये है कि आपने एज अ कंपनी यू हैव टेकन reasonable steps to keep that invention secret. So basically, in order to enjoy trade secret protection, you have to fulfill these three criteria. बहुत सारी एक वेल नोन ट्रेड सीक्रेट एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें शायद सबको ही पता है कोका कोला का फॉर्मूला, जो कि अभी तक सीक्रेट है. इट हैज बीन प्रोटेक्टेड वेरी सक्सेसफुली एज अ ट्रेड सीक्रेट. इसके अलावा हर्षे चॉकलेट और केएफसी की ओरिजिनल रेसिपी, लिस्ट्रीन, और इसके अलावा गूगल इसका सर्च का एल्गोरिदम. So these are all different examples of trade secret in which companies decided, उन्होंने ये कहा कि we should keep our technology secret. अब पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट में भी थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करना बीइंग अ बिजनेस मैन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखना है या आपको अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करना है. बिकॉज जब हम पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट में आपको डिस्क्लोज करना होता है. इन ऑर्डर टू एंजॉय द पेटेंट प्रोटेक्शन यू हैव टू डिस्क्लोज योर इन्वेंशन टू द पब्लिक. बट ट्रेड सीक्रेट में ये है कि ट्रेड सीक्रेट में you can keep your invention secret, I mean indefinitely. और इसमें ये है कि डिस्क्लोजर की कोई रिक्वायरमेंट. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई स्टैंड अलोन ट्रेड सीक्रेट का लॉ नहीं है. रादर ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स. बट yes, this is an important IP tool for the business. Copyrights is another form of intellectual property, और ये important है स्पेशली अगर मैं आपकी फील्ड ऑफ इनोवेशन की बात करूं, जिसमें सॉफ्टवेयर्स और आप एप्स और आपका सारा आईटी बहुत यूज होता है, उसमें कॉपीराइट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली कॉपीराइट जो है इट प्रोटेक्ट्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. और ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम लिटरेरी वर्क में एज अ कॉपीराइट पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करते हैं. सो कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन है वो 50 इयर्स या कुछ कंट्रीज में जैसे यूएस में 70 इयर्स है आफ्टर द डेथ ऑफ ऑनर. सो बेसिकली अगर हम इसको देखें, जैसे इकबाल की जो पोएम है या उसका लिटरेचर जो है वो अब अंडर कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि 50 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ author, it becomes it comes in the public domain. So जब हम ये कहते हैं कि एक चीज के ऊपर अब कॉपीराइट नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि आपके उसके ऊपर इकोनॉमिक राइट्स खत्म हो गए. अब उसको कोई भी यूज कर सकता है विदाउट योर परमिशन. बट यस, जो आपके मॉरल राइट्स हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं. जैसे मॉरल राइट मींस राइट ऑफ एट्रीब्यूशन, कि कोई भी इकबाल की पोइम को यूज तो कर सकता है लेकिन उसको अपने नाम से नहीं कर सकता. ठीक है. सो ये जो है, और राइट ऑफ सैंक्टिटी, कि आप उनके मटेरियल को इस तरह से यूज करेंगे जो कि जिसपे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. सो दीज आर बेसिकली द मॉरल राइट्स. यस, कॉपीराइट में बेसिकली ओके क्या था इस स्लाइड में. ओके यस, कॉपीराइट बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जैसे डिफरेंट हम चीजों को अगर कंपेयर करते जाएं, क्लैरिटी, पैटर्न. जब हम बात करते थे हमने कहा आइडियाज को प्रोटेक्ट किया जाता, बट कॉपीराइट के अंदर बेसिकली आइडिया प्रोटेक्ट नहीं होता, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज प्रोटेक्ट होते हैं. फॉर इंस्टेंस, आइडिया ये है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की जाए. ये जो है आपकी स्पेस इफेक्टिव है, तो दिस इज द आइडिया, नॉवल आइडिया मे बी. बट दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस. अब किसी ने इस तरह बना लिया, किसी ने इस तरह बना लिया, और थर्ड वन ने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको. सो दीज आर डिफरेंट expressions of the same idea, multi-story building. So same with the other,
कॉपीराइटेड वर्क कि आपका जो मेन आइडिया है उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. In order to get protection, copyright, your work should be original. It should not be copied. It should be original. You have to prove, and otherwise, copyright cannot be granted to you. और फिर ये है कि आपने अपना जो कॉपीराइट करने के लिए आपका जो वर्क है वो बेसिकली उसको आपने टेंजिबल फॉर्म में कहीं उसको फिक्स किया है. मे बी अगर वो एक सॉफ्टवेयर है या लेट्स से कि अगर वो आपका कोई भी कॉपीराइटेड वर्क है. जैसे बेसिकली कॉपीराइट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है. इसके अंदर लिटरेरी वर्क तो आता ही है. इसके अंदर आपकी जितनी भी ये आपका म्यूजिक है, आपकी फिल्म्स हैं, इसके अलावा क्रिएटिव वर्क में बुक्स हैं, पोइम्स हैं, सॉन्ग्स और सॉफ्टवेयर, ये सारी. तो आपका जो भी है, लेट्स से सॉफ्टवेयर है या इवन सॉफ्टवेयर तो रिटन फॉर्म में ही होता है. अगर मैं सॉन्ग की बात करूं, इट शुड बी फिक्स्ड इन सम वे. आपने बेशक उसको लैपटॉप में लिखा है या आपने उसको किसी पेपर पे लिख लिया है, आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है, या ये कि आपने उसकी वीडियो बना ली. सो इट शुड बी इन टेंजिबल फॉर्म. टर्म ऑफ प्रोटेक्शन एज आई सेड, 50 years आफ्टर द डेथ ऑफ ऑनर. ये पाकिस्तान में है. 70 years की है कुछ कंट्रीज में. बेसिकली जैसे पेटेंट के लिए और ट्रेडमार्क के लिए, इन ऑर्डर टू गेट रजिस्टर यू हैव टू विजिट दी आईपी ऑफिस, और आपको प्रॉपर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और अपनी पेटेंट प्रोटेक्शन सिक्योर करनी होती है. बट कॉपीराइट इज वॉलंटरी राइट. इट मीन्स कि ये जो ही आपने अपनी कॉपीराइटेड वर्क जो है, जो भी आपका क्रिएटिव वर्क था वो आपने किया, आपके राइट्स उसके ऊपर एस्टेब्लिश हो गए. बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी कहूंगी कि रजिस्ट्रेशन डू मैटर. बेशक आपने अपना कुछ जो भी क्रिएट कर लिया वो आपका कॉपीराइट है. आप अभी भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं कॉपीराइटेड वर्क. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्लीज उसको जरूर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वंस आप अपने वर्क को रजिस्टर करवा लेते हैं एज अ कॉपीराइट, then you become eligible, I mean, to claim different remedies under copyright ordinance. आप अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर करने के लिए, क्योंकि कॉपीराइट ऑर्डिनेंस बेसिकली एफआईए के स्केड्यूल पर भी है, बहुत सारी ऐसे लीगल एंड आपकी जुडिशियल जो रेमेडीज है वो इजी हो जाती हैं आपके लिए अवेल करना. सो कॉपीराइट वर्क जो है उसको रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए. और जैसे पैटर्न में मैंने कहा कि कुछ इंटरनेशनल नहीं होता. आपको हर कंट्री में जाके आपको इंडिविजुअली पैटर्न प्रोटेक्शन सीख करनी होती है. बट कॉपीराइट में ये है कि अगर आपने कॉपीराइट एक दफा करवा लिया, आपका कॉपीराइट है, तो ये जो बर्न कन्वेंशन के बेसिकली या 199 मेंबर्स हैं उसमें आपका कॉपीराइट वैलिड होगा. इसीलिए जो माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो सॉन्ग क्योंकि उसका कॉपीराइट वो यूएस नेशनल था वो सिर्फ यूएस में ही है. वो पाकिस्तान में भी माइकल जैक्सन का ही कॉपीराइट है. सो इस तरह से कॉपीराइट की कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक है, वॉलंटरी है, और ये बर्न कन्वेंशन के सारे कंट्रीज में. ओह सॉरी, सॉरी क्या हुआ? ओके फाइन. ओके देन ट्रेडमार्क्स. अब टेक्नोलॉजी और आई थिंक आपकी जो चीजें हैं, जो नॉवल आइडियाज हैं और जो टेक्निकल चीजें हैं, वो तो आप पेटेंट और कॉपीराइट में आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं. बट इन एडिशन टू दोज राइट्स, कुछ और राइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रेडमार्क्स. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव गुड नेम टू योर प्रोडक्ट, बिकॉज द ट्रेडमार्क्स और जो आपके ब्रांड नेम्स हैं, दे आई मीन दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. रादर एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं वो आपके कंज्यूमर के साथ, और आपकी वैल्यू, आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विशेबल बनाते हैं. सो ट्रेडमार्क्स जो है
जब हम कहते हैं ट्रेडमार्क, वो कोई एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक लेटर जैसे जे डॉट, और वो कोई एक खाली सिंबल भी हो। आपके लोगोस हैं, वो भी प्रोटेक्ट होते हैं एज अ ट्रेडमार्क। और इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स भी हैं, जिसमें बेसिकली साउंड मार्क्स जो हैं वो भी एज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो आपकी शेप्स हैं, जैसे ये टॉबलरोन चॉकलेट की शेप जो है वो भी एज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट होती है। और इवन आई सेड साउंड मार्क, ये जो रोर ऑफ लाइन है इस मीडिया हाउस से पहले हम हमेशा देखते हैं, इसको भी इन्होंने एज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट किया है। बट पाकिस्तान में अभी नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं होते। हमारे लॉज जो हैं अभी अपडेट होंगे तो ऐसी सारी चीजें भी प्रोटेक्ट होंगी। बट प्रोटेक्शन दीज थिंग डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, आपके बिजनेस के साथ अटैच होनी चाहिए इनकी एक, तभी ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। स्लोगन्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, जैसे ईट फ्रेश, दाग तो अच्छे होते हैं। सो आप अपने बिजनेस का कोई स्लोगन भी हो सकता है जिसको आप एज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रेडमार्क भी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है, यू हैव टू पे द रिन्यूअल आफ्टर एवरी 10 years, और आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन भी टेरिटोरियल है। एक चीज अगर आपने पाकिस्तान में प्रोटेक्ट की है और आपका ट्रेडमार्क है, हो सकता है वो सेम ट्रेडमार्क मे बी ब्राजील में किसी और कोई और कंपनी यूज कर रही हो किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। बट यस, देर आर सम ट्रेडमार्क जिनको हम कहते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क्स, उनकी एक थोड़ी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वो इंजॉय करते हैं। जैसे मे बी इफ लाइक आपका KFC है, मैकडोनल्ड्स है, और जितने भी ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं रिकग्नाइजेबल हैं अक्रॉस द jurisdictions, तो उन वो जो हैं उनकी थोड़ी हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। वो अक्रॉस द बाउंड्रीज भी वो रिकग्नाइज होते हैं। अच्छा, आई एम हैप्पी टू शेयर कि अगर मेरे साथ कुछ बिजनेस, कुछ कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में और इतने सारे हम एफर्ट करते हैं, हमने फंडिंग की और सारा कुछ किया, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि वन एस्पेक्ट कि आप ट्रेडमार्क को मिस नहीं करें। अपने बिजनेस को बहुत अच्छा सा थॉटफुल एक नाम दें। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे एक ट्रेडमार्क स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। जैसे कुछ नाम जो होते हैं वो बहुत जेनेरिक होते हैं। लेट्स से कि अगर किसी का ब्रांड है नूडल्स, आई मीन वो नूडल्स सेल कर रहा है और उसने बिल्कुल जेनेरिक नाम रख लिया अपने प्रोडक्ट का, उसने नाम भी नूडल्स रख लिया। और ऐसा होता है जैसे अगर किसी का कॉस्मेटिक्स का या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो अपने क्लिनिक का नाम द स्किन क्लिनिक रख ले। तो अगर आपने बिल्कुल जेनेरिक नाम रखा है तो इट्स वेरी वीक ट्रेडमार्क। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मीन जैसी आपकी प्रोडक्ट है उसी तरह का आपका ट्रेडमार्क है। आपके ट्रेडमार्क से पता चलता है, आइस एंड क्रीमी इज द ट्रेडमार्क, जिससे लगता है कि समथिंग डीलिंग विद दीज प्रोडक्ट्स। सिमिलरली सुजेस्टिव ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे एयरबस और या सिटी बैंक। इसमें बैंक का वर्ड है और उसका मतलब है कि वो बैंकिंग सर्विस है। बट यस, अगले दोनों कैटेगरीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क होते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क मींस कि इनकी इन्फ्रिंजमेंट इज डिफिकल्ट। जैसे कि आर्बिट्रेरी मार्क्स, कि वो बेसिकली कोई वर्ड है, उसका कुछ और मीनिंग है, बट आपने उसको किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज किया है। जैसे amazon, amazon फॉरेस्ट, बट यस amazon इज अ ट्रेडमार्क, वेल नोन आपका पोर्टल है कॉमर्स का। सिमिलरली शेल, शेल जो है पेट्रोलियम के रेफरेंस में यूज होता है ये ट्रेडमार्क, बट एक्चुअली आई मीन शेल इज समथिंग एल्स। सो एक ये भी वे हो सकता है कि आप अपनी चीजों के लिए जब आप ट्रेडमार्क सोच रहे हैं तो आप आर्बिट्रेरी मार्क्स जो हैं हो सकते हैं। Give you final. Then the most strong trademarks are fanciful trademarks. Fanciful trademarks ऐसे होते हैं जिसमें आप एक ऐसी टर्म कॉइन कर लेते हैं जो पहले शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती डिक्शनरी में, जैसे एडिडास।
या ये कि कॉर्डिक। कॉर्डिक अब तो खैर ब्रांड पता नहीं दोनों है, ये खत्म हो गया। लेकिन ये कि कॉर्डिक का वर्ड जो था ये डिक्शनरी वर्ड नहीं। सो ऐसे ट्रेडमार्क्स जो हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट इनको इन्फ्रिंज करना। तो ये भी है, अगर आप बहुत ज्यादा एक इमेजिनेशन है आपकी तो आप अपनी बिजनेसेस के लिए कोई फैंसीफुल मार्क्स जो हैं वो सोचें। यस, एक्सोन भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं ट्रेडमार्क के हवाले से, जो कि आई वुड लाइक कि आपको पता होने चाहिए। जब भी आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, आप ये आर का साइन यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क के साथ। फिर आप अपने ट्रेडमार्क को कंसिस्टेंटली यूज करें। जो भी आपका ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, वो जिस स्टाइल में रजिस्टर है, वो जिन फॉन्ट्स के साथ रजिस्टर्ड है, उसका जो कलर है, आप कंसिस्टेंटली अपने जो भी आपकी मीडिया प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर उसी तरह से यूज करें। और इसके अलावा इसकी आपकी कोई बल्कि एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन होनी चाहिए, सो दैट कि आप डील करते हैं जब अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने कमर्शियल पार्टनर्स के साथ, लाइसेंसी के साथ, असाइनीज के साथ, तो आप उनको बता सकें कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो किस तरह से यूज होगा और उसको कैसे यूज करना है, उसकी कोई गाइडलाइंस डेवलप करें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बिजनेसेस करते हैं, जो विच एक्चुअली लीड टू यू नो which actually make their trademark generic word. For instance, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अवॉइड करें जो भी आपका ट्रेडमार्क है। लेट्स से इट्स कैंडी लैंड। कैंडी लैंड जो है एक सिंगल वर्ड के साथ रजिस्टर है। आप इसके दरमियान में गैप नहीं दें जब आप लिख रहे हैं, या हाइफन नहीं डालें, इसको आप इसी तरह से लिखें। और सिमिलरली आप ट्रेडमार्क को कभी भी आप उसको वर्ब के तौर पे यूज नहीं करें। उसको जब हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक जेनेरिक टर्म बन जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने स्पॉटिफाई से ये सॉन्ग स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग से आप सुन रहे हैं, आप इसे ये नहीं कहें कि स्पॉटिफाई मैंने किया ये सॉन्ग। सो और कंपनीज जो हैं दे आर वेरी एग्रेसिव और बहुत एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करती हैं अपने ट्रेडमार्क्स को, और बहुत कॉन्शियसली वो इस तरह की चीजों को नोट करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पब्लिक में, जैसे हम यूजुअली एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने ये गूगल किया। सो होगा ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंटरनेट सर्च करने को कहना शुरू कर देंगे गूगल करना। सो फिर क्या होगा कि जब एक जेनेरिक ये टर्म बन जाती है तो फिर उसके ऊपर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन या आपकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत वेल नोन थे, वो अब जेनेरिक टर्म बन गए। जैसे सर्फ, एक्चुअली अभी भी सर्फ यूज होता है ट्रेडमार्क, बट हम यूजुअली किसी भी वॉशिंग पाउडर को सर्फ कहते हैं। सिमिलरली पैम्पर्स हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क, कंपनीज को भी विजिलेंट होना चाहिए ताकि उसको जेनेरिक टर्म में ना यूज किया जाए। ये भी एक एग्जांपल है, इजी पैसा। इजी पैसा से इट इजी पैसा मोबाइल वॉलेट सर्विस, नॉट से कि मैंने इजी पैसा करवाया। सो दीज आर फ्यू टिप्स रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क्स। देन यस, डिजाइन्स, अपीयरेंस डू मैटर, स्पेशली अगर आपकी टेक्नोलॉजी सेम है और मार्केट के अंदर काफी कंपटीशन है उस तरह की चीजों का, तो आप प्रोडक्ट को एक विजुअली अपीलिंग एक शेप दे, और वो शेप इट इज प्रोटेक्टेड इन आईपीओ पाकिस्तान। सो ये 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती हैं। जैसे 2D में हमारे पास जो आपके टेक्सटाइल के डिजाइन आते हैं, और आपके 3D में किसी भी तरह की शेप का डिजाइन जो है वो प्रोटेक्ट होता है। और उसमें कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के लिए है या इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए है। आई मीन प्रोडक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका ये आप हेलमेट देख लें, या आपके अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर है, और इवन आई मीन एवरी प्रोडक्ट जो भी एक ब्यूटीफुली शेप्ड प्रोडक्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नॉट, आई डोंट से ब्यूटीफुली, बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइन इतने अच्छे भी नहीं होते लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट होते हैं, बट इट शुड बी ओरिजिनल और कॉपीड नहीं होना चाहिए। 30 ईयर प्रोटेक्शन है पाकिस्तान में डिजाइन की, और ये कि सम टाइम
एक प्रोडक्ट आप प्रोटेक्ट करते हैं और समटाइम एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं जिनको हम इकट्ठे यूज करते हैं। जैसे आपकी क्रॉकरी है, उसमें बहुत सारे जो बर्तन है वो इकट्ठे यूज होते हैं, उनके ऊपर एक ही डिजाइन होता है। सो इस तरह से ये डिजाइन जो हैं वो भी पाकिस्तान में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो मोबाइल्स जो हैं, सेल फोन, इनके डिजाइन्स, इनके बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं। इसकी जो स्लीकनेस है या इसकी स्क्रीन के डिजाइन है, इसके जो भी आपके कोई छोटा सा बल्ज है, कोई छोटी शेप है, उसकी बैक स्क्रीन, वट, तो डिजाइन इसके अंदर बहुत सारे जो हैं एक मोबाइल के अंदर जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। इवन दिस इज द वेल नोन एग्जांपल डिजाइन पैटर्न की कोका कोला की बॉटल। ये बॉटल बेसिकली एक यूएस में एक सॉर्ट ऑफ सर्वे किया गया, और ये बॉटल का डिजाइन जो है, इवन लोगों ने ब्लाइंड फोल्ड थे बट दे रिकग्नाइज बाय फीलिंग दिस बॉटल के ये कोका कोला की बॉटल है। और अगर ये टूटी हुई भी कहीं कहीं पड़ी हुई थी, देन पीपल रिकग्नाइज इट कि ये कोका कोला की बॉटल है। सो इस तरह से डिजाइन डू मैटर। एक्चुअली डिजाइन क्रिएट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड द पब्लिक माइंड। सो दैट्स वाई आपको डिजाइन को भी एक ड्यू जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा जी, अभी ये कि क्यों प्रोटेक्ट किए जाएं, आपके लिए क्यों मैटर करता है? किसी ने स्टार्ट में, आई एम वेरी हैप्पी टू हर्ड कि किसी ने कहा कि यस, आईपी एसेट्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। आई वुड लाइक टू से, आई मीन, first of all, IP gives you an exclusive right to exploit your product in the market. आपने पेटेंट लिया, आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ आप यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं करेगा, सिर्फ आपका साइन ही, लाइसेंस ही या आपकी मर्जी से यूज किया जाएगा, और कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपकी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली आपका ट्रेडमार्क है या आपका कॉपीराइट है। और basically IP established the right of ownership. I mean, this is prima facie एक लीगल एविडेंस है ऑनरशिप का। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, एंड इफ यू हैव प्रोटेक्टेड योर प्रोडक्ट एज अ कॉपीराइट और पैटेंट, यू कैन से दैट आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्रोडक्ट। और ये आपका एक प्रूफ ऑफ ऑनरशिप भी होता है, क्योंकि ये एक नेशनल रजिस्टर का पार्ट है, पैटर्न रजिस्टर का या कॉपीराइट डेटाबेसेस का, ट्रेडमार्क सॉरी रजिस्टर का। सो आपको ऑनरशिप इस्टेब्लिश करना इजी होता है। और जब आप इसके ऊपर अपनी ऑनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं, देन यू कैन कंट्रोल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर इन्वेंशन और योर टेक्नोलॉजी और सर्विस, क्योंकि आप अपने बेसिकली उस नाम को या उस टेक्नोलॉजी को ही तो लाइसेंस कर रहे होते हैं या आप उसको असाइन करते हैं। जब आपकी अपनी ऑनरशिप उसके ऊपर स्टैब्लिश नहीं है, तो हाउ कैन यू, आई मीन, सेल इट टू अदर्स, या आप शेयर कैसे कर सकते हैं दूसरों के साथ? और यस, इन टूडेज वर्ल्ड अब ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस टूल भी है। आईपी आपका प्रोफाइल एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी, एज एन इंडिविजुअल इन्वेंटर भी, और एक कंपनी के तौर भी आपका जो आईपी प्रोफाइल है, इट गिव्स वैल्यू टू योर कंपनी। ओके फाइन, अभी coming back to that slide, अब I think I have explained multiple IP rights, और अब शायद हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके अंदर क्या क्या राइट्स हैं। ओके चलें, अभी बताएं, कोई शेयर करेगा अपने व्यूज, कौन से राइट्स हैं इसमें, इस आईफोन सेट में? You just raise your hand, and then we can open your mic then. So please just check. Okay, design. There's a one from the participant from Raza Alwi. He said design. Okay, yes, industrial design, right? Or Okay, great. Anything else? I think they are typing, and the one for the tabular feature from Muhammad Umar Khan. And now we have Syed Javed Ali. He said brand. Okay, yes, brand, iPhone, yeah. Okay, I think it's coming. In the meanwhile, I just remember the Apple to Samsung about their pattern, how to
open your Exactly. mobile. So it Hmm. was a huge thing, and they have to pay, I think, millions of that. Okay, we have another one from the Sana. She said Hmm. design. Okay, and we have Ziaullah. He said that hardware. Yes, it's also about the chip and the designing. Hmm. And Arham said it's pattern for the OS. Yes, operating Exactly. system as well. Hmm. And we have pattern for OS. Yes, same. And then Sana say, I think it, it's UI UX, especially the design, that the design Hmm. that you are presented, it's way that how slim it is, how smart it is, how it looks like, uh, beautiful, that you attracted. Oh, I wanted to use that mobile, like iPhone, True. do every time. Okay, Exactly. the build quality of the Shadow Rahman, that's right. Navigation mode, Hmm. how that you are using it. Okay, that's one Hmm. of the thing as well. Okay, and we are waiting for that, or I think we just go further on. I think there are Okay. many. Yes, absolutely. Thank you. आपने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए इसमें IP. I'm really happy कि ओके लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है, अगर मैं आपको इसमें दिखा सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमार्क। अच्छा जी, ट्रेडमार्क्स में बेसिकली इसमें एप्पल एज अ ब्रांड और इसका लोगो, ये जो एप्पल वाला लोगो है। फिर इस प्रोडक्ट का एक अपना जो नाम है, आईफोन 16 है ये, आईफोन 16 प्रो। इवन इसकी स्टार्टअप टोन्स, क्योंकि मैंने ये कहा था कि नॉन ट्रेडिशनल जो ट्रेडमार्क्स हैं वो उसमें साउंड मार्क्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। सो स्टार्टअप टोन्स जो हैं उनको भी एज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप क्या देखते हैं? अच्छा जी, डिजाइन। ओके, डिजाइन में यस, ओवरऑल शेप ऑफ द फोन। And another very important aspect of design is कि design also protect geographical user interface। ये जो आपके icons हैं, ये भी एज अ इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव हैं। शायद आईफोन में जो आपके कॉन्टेक्ट्स का या आपकी फोन कॉल्स का आइकन है वो भी डिफरेंट हो सैमसंग से। सो इस तरह ये छोटे छोटे जो यूजर जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, ये आइकन्स हैं, ये भी एज अ डिजाइन प्रोटेक्ट होते हैं। फिर कॉपीराइट है। कॉपीराइट के अंदर आपका सारा सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट होगा। इसके अलावा जो इसका मैनुअल है, आपकी रिंग टोन्स, इट्स अप टू यू, आप इसको कॉपीराइट में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसको एज अ म्यूजिक वर्क और इसको एज अ ट्रेडमार्क भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज अ साउंड मार्क। और इमेजेस, जो भी इसके आप इमेजेस हैं, आपके ब्रोशर्स हैं या आपका पब्लिशिंग मटेरियल है, वो सारी चीजें आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट करते हैं। पैटर्न में इसकी टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की इसके अंदर टेक्नोलॉजी, जो भी इसके टेक्निकल फीचर्स थे, बैटरी, स्कैनर्स, कैमरास, कोई भी जो भी इसमें चीजें टेक्निकल हैं वो एज अ पैटर्न भी प्रोटेक्ट होती हैं। यस, इसके अंदर ट्रेड सीक्रेट भी है, टेक्निकल नो हाउ जो भी है आप अपने बिजनेस की देखिए। समटाइम ये होता है कि इवन अगर हम पेटेंट डॉक्यूमेंट पढ़ भी लें, एक टेक्नोलॉजी को गो थ्रू भी कर लें, फिर भी शायद हम उस प्रोडक्ट को ना बना सकें या हम उसको लैब में उसको रिप्रोड्यूस ना कर सकें अनलेस एंड अनटिल वी डोंट हैव दैट नो हाउ। तो कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो नो हाउ, एंड यूजुअली वो ट्रेड सीक्रेट के तौर पे ही प्रोटेक्ट की जाती है। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसे डाटाज वगैरह हैं या कोई एल्गोरिदम्स हैं जिसको एज अ ट्रेड सीक्रेट जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो इस तरह से एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल आईपी राइट्स हैं, ओवरलैपिंग भी है, और ये आपका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, आपने कौन सा राइट जो है वो सिक्योर करना है, आपका कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा कंपेटिटिव है, वो ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करेगा, आपके लिए वैल्यूएबल है, उसको प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज हाउ सिंगल प्रोडक्ट कैन एग्जिबिट मल्टीपल आईपी राइट्स। ओके, वी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल आईपी सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान में आईपी सिस्टम कैसे मैनेज हो रहा है इसका जस्ट अ क्विक ओवरव्यू। देखिए, शायद हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आईपी की पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि पैटेंट ऑफिस, ट्रेडमार्क ऑफिस उस वक्त से ही प्रेजेंट है जब से पाकिस्तान बना। 1948 में वी इनहेरिटेड आईपी लॉज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और वी कीप ऑन रजिस्टरिंग डिफरेंट आईपी राइट्स। उसमें ट्रेडमार्क भी था, कॉपीराइट भी था, पेटेंट्स भी था।
1995 में इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, जब WTO रिजीम जो है वो उसमें हमने ट्रिप्स जो है विच डील्स विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ट्रिप्स जो है वो एक पार्ट बना WTO का एनेक्स्टर के तौर पे, और IP राइट्स जो हैं वो ट्रेड का पार्ट बन गए। तो इस तरह से अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड है और है उसके अंदर IP जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे है, क्योंकि अब ये WTO जो है डील करता है जितने भी इवन IP रूल्स। अनदर माइलस्टोन जो था IP एडमिनिस्ट्रेशन में वो 2005 में था, व्हेन IP पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। इनिशियली सारा सिस्टम जो था फ्रेगमेंटेड था, पेटेंट ऑफिस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ऑफिस सेपरेटली वर्क कर रहे थे, बट इन 2005 एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड, और उसके अंडर जितने भी IP राइट्स के ये ऑफिसेस हैं उनको इकट्ठा किया गया। नाउ वी कैन से दैट वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ IP सिस्टम इन द वर्ल्ड। करते हैं डिजाइन, पैटर्न्स, कॉपीराइट, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है और रजिस्टर करती है। फिर इनिशियली वी वर वर्किंग अंडर कैबिनेट डिवीजन, और 2015 में IPO's control was shifted from cabinet to Ministry of Commerce. So, yes. So currently we are working under Ministry of Commerce, and we are an autonomous body. We have registration offices in Karachi, Patent, Copyright and Trademark Office. We have our regional presence in multiple cities. लाहौर में है हमारा रीजनल ऑफिस, पेशावर में है, कोयटा में भी हमने रिसेंटली ओपन किया है। सो दिस इज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। अगर आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है या आपको कॉपीराइट एप्लीकेशन फाइल करनी है, आप हमारे किसी भी रीजनल ऑफिस में फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग जो है वो अभी उस तरह से इनेबल नहीं है, सिर्फ ट्रेडमार्क में है, लेकिन फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं दीज ऑफिसेज को, और आपकी हमारी हेल्पलाइंस हैं। सो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल फॉर योर सर्विस। Once you have secured your IP rights, what next? The next challenge is to enforce your IP rights. So पाकिस्तान के अंदर सेपरेट स्पेशलाइज्ड IP कोर्ट्स हैं, IP ट्रिब्यूनल्स, और राइट नाउ 3 हैं हमारे पास IP कोर्ट्स, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। जितने भी IP से रिलेटेड इन्फ्रिंजमेंट के केसेस हैं वो यही कोर्ट्स डील करती हैं, और जाहिर है इनके अगेंस्ट फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एट पार हैं। इनकी अगेंस्ट जो नेक्स्ट फोरम हाई कोर्ट है, और देन सुप्रीम कोर्ट। दिस इज हाउ द जुडिशियल सिस्टम इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, अब मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बेसिकली एक थोड़ी सी टिप्स जो हैं, क्योंकि इसका टाइटल स्टार्टअप्स था, तो मैंने थोड़ी सी टिप्स जो हैं और जो कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद स्मॉल कंपनीज, मैंने इसको यहाँ पे कोलैक्ट किया है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यू शुड कंडक्ट एन IP ऑडिट टू आइडेंटिफाई व्हाट टू बी प्रोटेक्टेड। एक्चुअली देखिए ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। एक तो ये कि जब आप कोई भी IP राइट लेते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, आपका मनी इन्वेस्ट हो रही है आपकी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको देखना है क्या आपको क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करनी। देन एज आई सेड अर्लियर, कुछ केसेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्लियर आप इसको फाइल करें, as early as possible before disclosing your technology to anyone। तो प्रोविजनल पेटेंट एक ऑप्शन है, उसको आप यूज करें। बहुत सारे स्टार्टअप्स फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। और ये के देन ये भी इम्पोर्टेंट है, जब छोटी कंपनीज होती हैं, पेटेंट पाकिस्तान में तो शायद इसकी इतनी ज्यादा फी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली पेटेंट जो है एक बहुत कॉस्टली अफेयर, बहुत ज्यादा फी है इसकी। सो ये आपको डिसाइड करना है एज अ बिजनेस कि क्या आपने इसको एज अ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करना है या आपने इसके ऊपर पेटेंट लेना है। ये दोनों राइट्स जो हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट इनकी डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट है, और इनकी प्रोटेक्शन भी डिफरेंट। अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप समझते हैं कि शायद वो पेटेंट के थ्रेशोल्ड में नहीं हो सकती,
और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एज अ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको एज अ ट्रेड सीक्रेट भी रख सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपके पास अगर एक छोटे कंपनी के तौर पे बहुत ज्यादा फाइनेंसिस नहीं है, तो आप अपनी कंपनी उसको एज अ ट्रेड सीक्रेट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट यस, अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप समझते हैं कि बहुत क्विकली ये रिवर्स इंजीनियरिंग है और बहुत सारे infringement के, तो आप उसको एज अ पैटेंट प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पैटेंट गिव्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। एनी हाउ, इट्स अप टू दी कंपनीज। ट्रेडमार्क को इग्नोर नहीं करें। हमारे पास हमेशा, मैं वमेन हेल्पलाइन पे भी इसी तरह की कंप्लेंट सुन रही होती हूँ कि आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने अपने ब्रोशर बना लिए, आपने अपने वो अपना कंपनी का सारा सेटअप बना लिया, अपना नाम रख लिया, बट जब आपने मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको कोई लीगल नोटिस आ गया कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो तो ऑलरेडी मेरा ट्रेडमार्क है, यू आर इन्फ्रिंजिंग माय ट्रेडमार्क। सो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी कंपनी को लॉन्च करने से पहले, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले काइंडली ट्रेडमार्क ऑफिस में आप जरूर सर्च करवाएं कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, क्योंकि रीब्रांडिंग इज वेरी कॉस्टली। फिर आप क्लैरिफाई करें ऑनरशिप इश्यूज, क्योंकि एक बिजनेस जो है, वी आर लिविंग इन एन इंटरडिपेंडेंट और इंक्लूसिव वर्ल्ड। आजकल कंपनीज को बहुत कुछ आउटसोर्स करना होता है, सो ऑनरशिप इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप और स्पेशली आईपी की जो ऑनरशिप है वो समटाइम बहुत ही मर्की हो जाती है, एंड में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब स्टार्ट से ही अगर आपने वो टेक्नोलॉजी किसी यूनिवर्सिटी से एक्वायर की है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इसका ऑनर है, और अगर इसका ऑनर यूनिवर्सिटी थी तो आप इसको प्रॉपर असाइन करें, और वो असाइनमेंट जो है वो पेटेंट ऑफिस के रिकॉर्ड में भी होती है। इसी तरह फ्रीलांसर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये कमर्शियल पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ जो भी आईपी है उसके ऑनरशिप इश्यूज को आप वॉच करें। फिर फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च, ये एक सर्च है। यूजुअली पेटेंट आपने ले लिया, आपने अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया, लेकिन जो ही आपने अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू की, इसको स्केल अप किया, तो आपको पता चला कि आप तो बहुत सारे दूसरे लोगों के भी पैटर्न्स जो हैं उसमें इन्फ्रिंज हो रहे हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। सो एक फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च, ये एक टेक्निकल सर्च है जो आप करवा सकते हैं अपने उसके लिए लॉन्च करने से पहले। फिर ये है कि यस, आई एम हैप्पी टू नो कि बहुत सारे हमारे इधर बिजनेस जो है इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे हैं। यस, थिंक इंटरनेशनली बट सिलेक्टिवली एज फार एज द आईपी इज कंसर्न, क्योंकि आईपी टेरिटोरियल राइट है, और एज आई सेड ये एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। आप सिर्फ उन मार्केट्स में आईपी सिक्योर करें जिनको आप एज अ बिजनेस टारगेट कर रहे हैं। लेट्स से आपका जो कंज्यूमर्स हैं वो अगर चाइना में हैं, तो आप चाइना में पेटेंट लें, रादर ये कि आप यूएस में पेटेंट लें या ईपी में लें। तो इस तरह से आप इसको स्ट्रेटेजिकली देखें। फिर ये है कि पैटर्न डेटाबेसेस, इसके ऊपर ऑल टुगेदर एक बिल्कुल सेपरेट प्रेजेंटेशन हो सकती है कि जो पैटर्न डेटाबेसेस हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं वो किस तरह से कंपनीज जो हैं वो यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, आप जी इनकी कंपेटिटर्स ढूंढने के लिए और टेक्निकल अच्छा, इसके लिए लिंक्स भी। इनका अगर हो सके तो एंड में शेयर कर दीजिएगा, चैट्स में लोग देख सकें जी इनकी जो जी, मैं लिंक्स हैं। चैट्स में मैं बिल्कुल पेस्ट कर और दूंगी। इसकी प्राइसिंग भी जरूर बताइएगा कि ये सवाल जरूर आने वाला है। अच्छा, नहीं, कि ये इनकी फ्री ऑफ एक्चुअली कॉस्ट है। बेसिकली जो पैटर्न डेटाबेसेस जो बड़े बड़े आईपी ऑफिस है, यूएस का है, ईपी का है, और बहुत सारे जैसे वाइपो का पैटर्न डेटाबेस है, ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन सिर्फ ये है कि दिस इज नॉट, पैटर्न सर्च इज नॉट लाइक गूगल सर्च। इसको हर कोई नहीं कर सकता, यू हैव टू लर्न, और या फिर आपको पे करके सर्च करवानी पड़ती है। बट ये डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूएबल है। पैटर्न इंफॉर्मेशन में भी हम किसी फ्यूचर सेशन में मैं आपको बता सकूंगी कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में लाइसेंसिंग है और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑब्वियसली आईपी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कितने सिक्योर किया गया है आपने अपना आईपी को किस तरह से। तो ये कुछ टिप्स थी, और इसके अलावा ये हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारी वेबसाइट है। अब मैंने इसके अंदर ना वो निटी ग्रिटी रजिस्ट्रेशन की इंक्लूड नहीं की, क्योंकि बेसिकली अगर आप फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है कि हाउ टू रजिस्टर पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फिर हमारी जो हेल्पलाइंस हैं उसमें जो वुमेन, अगर यहाँ पे कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस वुमेन है, शी कैन ऑलवेज अप्रोच मी। और ये आईपी हेल्पलाइन है जो वुमेन बिजनेस
बिजनेसेस के लिए डेडिकेटेड है। सो इस तरह से यस यू कैन अप्रोच आईपीओ। अच्छा, ये एक और इनिशिएटिव है, ये बेसिकली बस क्विकली 2 स्लाइड्स हैं इसकी, मैं आपको इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। देखिए, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन आईपीओ एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि पैटेंट्स में, दिस इज पैटेंट्स में है कि पैटेंट है, इसके लिए आप खुद नहीं लिख सकते। यूजुअली आप अपनी लीगल सर्विसेज लेते हैं और उसमें पे करना पड़ता है। आमतौर पे छोटी कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पेटेंट के लिए लीगल सर्विसेज ले लें। तो विद दिस, सॉरी, अच्छा एनी हाउ, एक सेकेंड, ओके ओके, सॉरी। अच्छा जी, सो एक इनिशिएटिव था जो हमने ज्वाइन किया वाइपो के साथ। पाकिस्तान ने वाइपो का इन्वेंटर असिस्टेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया। इसमें होता क्या है कि हम बेसिकली जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या फिर इन्वेंटर्स हैं जो अंडर रिसोर्स्ड हैं, लीगल फी नहीं पे कर सकते, हम उनको कनेक्ट करवाते हैं लॉयर्स के साथ, जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो बेसिस पे लीगल सर्विसेज देते हैं और उनको असिस्ट करते हैं टू फाइल एंड टू मेक देयर पेटेंट एप्लीकेशंस। वो नेशनल इंटरनेशनली यूएस में फाइल करना है। अगर आपने पहले कोई पैटेंट, आप में से ऑडियंस में से किसी ने फाइल किया है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कितने दे आर हेल एक्सपेंसिव, आई मीन दीज अटर्नीज, पैटेंट अटर्नीज। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं, और अब तो बल्कि इसके अंदर ऐड भी किया है, कमर्शलाइजेशन के लिए भी इसमें एडवाइस मिलती है छोटे स्टार्टअप्स को। सो ये एनी हाउ, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो आई वुड गाइड देम कि ये किस तरह से आय जो है आप फाइल कर सकते हैं। बट हमारी वेबसाइट पे भी ये सारा क्राइटेरिया दिया गया है। लेकिन ये है कि इन ऑर्डर टू गेट असिस्टेंस अंडर दिस प्रोग्राम, आप अगर एक स्टार्टअप हैं तो आपको फाइनेंशियली कुछ क्राइटेरिया है जिसको मीट करना है। ऑफ कोर्स ये हर एक के लिए ओपन नहीं है, ये वेबसाइट पे भी है, और मोरओवर इसकी हेल्पलाइन भी है। यू आर मोस्ट वेलकम अगर आपको इसके बारे में इन्फो चाहिए। So thank you so much. This was all about my presentation. I don't know, आपके पास अगर टाइम है, हम एक क्विक क्विज कर सकते हैं जस्ट टू नो कि आपने कितना अब्जॉर्ब किया इसमें, मे बी, या फिर हम Okay, क्वेश्चन that's आंसर great. सेशन भी That's कर great. सकते हैं अगर I आप think we just go क्वेश्चन for the आंसर। Q&A. चलें जी, एक सवाल ओके आ गया ओके है उमर की फाइन, तरफ से. जी Okay, जी। Umar is asking if a company builds a product based on international alliance standard and another company is also developing a similar solution, how we can identify as an original inventor, protect its implementation through patents or any IP rights in the Pakistan. Okay, thank you so much, thank you. This is very important question actually and very very fundamental question, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, जब मैंने ये कहा कि बी क्विक टू फाइल योर पैटेंट, ठीक है, इसका मतलब है कि जिसने सबसे पहले पैटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी वो ही उसका ऑनर होगा पैटेंट का। लेट्स से जैसे आपने कहा इंटरनेशनली, 1 मिनट के लिए हम पहले इसको नेशनल सिनेरियो में ले जाएं कि आप कराची में हैं, एक कंपनी है कराची में, उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, एक और यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वो सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। अब इन दोनों में से जो क्विकली पेटेंट ऑफिस में जो इतना अवेयर था और इतना विजिलेंट था, उसने पेटेंट फाइल कर दिया, उसके नाम पे ही पेटेंट प्रोसेस होगा। आई मीन फर्स्ट टू फाइल सिस्टम है पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में भी। सो अगर आप सबसे पहले आ जाते हैं पेटेंट ऑफिस में तो एप्लीकेशन पेटेंट की आपके नाम पे प्रोसेस होगी, और आपके बाद में जितनी भी एप्लीकेशन उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगी वो प्रोसेस नहीं होंगी, क्योंकि बेसिकली आप फर्स्ट फाइलर हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह, इसीलिए कहते हैं पेटेंट के लिए आपको अवेयर भी होना है, आपको विजिलेंट भी होना है। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, केस स्टडीज हैं जिसमें एक टेक्नोलॉजी एक कंपनी ने बनाई लेकिन उसने पेटेंट फाइल नहीं किया, किसी और कंपनी ने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, और वर्स्ट कम सिनेरियो ये हुआ कि उन्होंने उस ओरिजिनल इन्वेंटर कंपनी को रोक दिया क्योंकि अब वो पेटेंट ऑनर है। सो इसी तरह से
नेशनल लेवल पे करता है ये सिस्टम काम। बट एज फार एज द इंटरनेशनल सिस्टम इज कंसर्न, इंटरनेशनल सिस्टम है एज आई सेड कि एक टेरिटोरियल राइट है। अगर पाकिस्तान में आपने पेटेंट जब आप फाइल करते हैं और अगर एक कंपनी ने यूएस में फाइल किया है तो ये होगा कि किसने सबसे पहले फाइल किया है। क्योंकि जब मेरे पास बीइंग एन एग्जामिनर मैं पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन करती हूँ तो यूएस का डेटाबेस भी देखा जाता है, ईपी का भी, और जितने भी मेजर डेटाबेसेस हमें अवेलेबल हैं तो उसको देखा जाता है। अगर आपने फाइल किया और आपसे पहले वो यूएस का पेटेंट है तो आई वुड साइट दैट पेटेंट टू यू कि आप इसके ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी किसी यूएस कंपनी का पेटेंट। सो आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जी, that's true, that's true. And now we are waiting for another question. I know that time is about to हाँ, end, किसी ने but it's हैंड still रेज भी किया था। जी. I think if you just open your mic, okay, there's a question. Okay, he is जी जी asking, मुसद्दिक साहब फरमा रहे हैं, where we can check either the process or it's already patent or not. Could you please share the details or a link or the database that we can check the process ourselves as well? Like वाइपो की वेबसाइट अगर लिंक वगैरह है तो वो काइंडली प्लीज से शेयर कर दें। फिर एक और जी जी सवाल आया है हुसैन साहब का। Okay, he says that how long is the validity period of the provisional patent and when it should be applied for the final or complete patent registration? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोविजनल एप्लीकेशन। देखिए हमारे पास ये होता है कि हम प्रोविजनल पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है जिसको अवेल करना चाहिए आई होप। लेकिन होता क्या है कि कंपनीज प्रोविजनल एप्लीकेशन तो फाइल कर देती हैं बट कंप्लीट एप्लीकेशन कभी भी फाइल नहीं करती। But once you have filed the provisional application, you have 12-month period. अब now 12 month is non-extendable statutory time limit. अब इसके अंदर अंदर ही अगर आपने कंप्लीट फाइल कर दी तो कर दी, अदरवाइज आपकी जो प्रोविजनल आपने पहले फाइल की थी वो भी अबेंडन हो जाएगी। होता क्या है कि हमारे लोकल इन्वेंटर्स कंपनीज प्रोविजनल तो बहुत शौक से पैदा करते हैं, सॉरी फाइल करते हैं, लेकिन कंप्लीट एप्लीकेशंस नहीं फाइल करते, वो भूल जाते हैं या इंटरेस्ट नहीं रहता या आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, लेकिन ये है कि वो भी अबेंडन हो जाता है। तो इसलिए आप प्लीज आप प्रोविजनल फाइल करें, लेकिन इसके साथ 12 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करें। क्योंकि जो आपकी प्रोविजनल एप्लीकेशन है उसको हम कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आपको डेट देने के लिए होती है। क्योंकि जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन देंगे उसकी फाइलिंग डेट वो होगी जो प्रोविजनल की थी। ठीक है जी। तो इसलिए हम उसको एग्जामिन नहीं करते, प्रोविजनल पैटर्न की कोई टर्म नहीं होती, सिर्फ प्रोविजनल एप्लीकेशन होती। यस Thank you. Now we have another question from Ziaullah Mughal. He said that how we can patent a software, an application or like AI, machine learning product. तो वो पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर को हम कैसे करें जिसमें खास करके एआई, ब्लॉकचेन ओके और जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उस पर यूज करके हम कोई बनाते हैं, तो यस उसके हवाले यस से काइंडली इनको बताइए और लिंक जरूर शेयर करें। ये सोलिया ने भी पूछा कि वो वाइपो का और वो जो लिंक्स है दो तीन, जी काइंडली जी वो भी आप साथ आई साथ हमें चैट पे शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको शेयर करती हूँ। देखिए ये जो आपने एआई और ये वाली जो डिबेट है, या इट्स अ बिग चैलेंज एक्चुअली। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ने हमारी जो इनोवेशन लैंडस्केप है उसको इतना रैपिडली चेंज किया है कि अब हमारे पास एआई बेस्ड इन्वेंशंस हैं, इवन एआई इन्वेंटर्स हैं जो कि जिसके अंदर ह्यूमन कंट्रीब्यूशन नहीं है और उन्होंने इंडिपेंडेंटली भी इन्वेंशंस की हैं। अगर आपने डाबोस वाला केस देखा हो तो आईपी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसी इन्वेंशंस को अकोमोडेट करना। और जो आईपी लॉज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज इवॉल्विंग। बट पाकिस्तान में क्या है, अगर मैं आपको नेशनल सिनेरियो दूं कि हमारा जो पैटर्न लॉ है वो भी अभी उस तरह से अपग्रेडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाउ वी डील एक्चुअली सच इन्वेंशंस कि एक ऐसी इन्वेंशंस जो कि कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड है या जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ऐप बेस्ड है, या ये कि एआई बेस्ड है, वो उसमें क्या होता है कि जो आपका एल्गोरिदम है, सोर्स कोड है, ये वाला सब चीजें जो हैं वो आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट करते हैं, और जो आपकी बाकी इन्वेंशन है उसको आप सिस्टम कह लें, उसको आप डिवाइस कह लें, वो आप पेटेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट यस जो आपका सोर्स कोड है, एल्गोरिदम वगैरह है, वो सब चीजें आप जो है कॉपीराइट में करेंगे। इस तरह से प्रोटेक्ट होती हैं पाकिस्तान में।
ये Okay, we can take a last question हम्म, because mashallah, question is keep coming up because they're all software services or product based. So that's why I keep asking. Okay, so now we will take a last question. But if we can do not file the complete patent application and the professional application becomes abandoned, can we another file for the provisional application? Again, means he just want to ask if something happened and he यस wants यस to file again. तो प्लीज इसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल हुसैन साहब जी बिल्कुल आप फाइल कर सकते हैं, बट देखिए इसका लॉस क्या है इसमें। आपने जब पहली प्रोविजनल फाइल की, लेट्स से आपने आज पहली प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की, तो आपको जो फाइलिंग डेट मिली थी वो थी आपकी 18 मई, ठीक है। और 12 माह के अंदर आपको फाइल करनी थी। और जो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन अगर कंप्लीट हो जाती तो आपकी प्रोटेक्शन 18 मई से स्टार्ट होती 2026 से। बट समहाउ आपने मिस कर दिया, आपने कंप्लीट नहीं फाइल की, अबेंडन हो गई। अब आपने एक नई एप्लीकेशन प्रोविजनल फाइल कर दी, मे बी जब भी आपने फाइल की, फिर आपकी जो फाइलिंग डेट है वो वहीं से स्टार्ट होगी। सो इस तरह से अगर ये आपको सूट करता है तो ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें। क्योंकि अभी फिलहाल हम अपना पूरा जो पाकिस्तान का पैटर्न डेटाबेस है उसको हम वो नहीं कर रहे, पब्लिक नहीं कर रहे, इसलिए ये पब्लिश नहीं होती। वरना अदरवाइज प्रोविजनल एप्लीकेशंस दुनिया में जब पब्लिश भी हो जाती हैं तो तब भी फिर उनकी नॉवेल्टी नहीं रहती, फिर आप दोबारा नहीं कर सकते। बट ये पाकिस्तान में कर सकते। अच्छा, जी जी वो इससे करिए मुझे एक पाकिस्तान में। रिलेटेड, जी रिलेटेड भी जी एक जी आप मुझे बोले याद, जी जी प्लीज 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 एक प्लीज किसी ने पूछा था कैरी ऑन। कि हम कहाँ से देख सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल जो डेटाबेसेस हैं वो तो उनके लिंक्स में शेयर कर दूंगी, वो आप उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। वाइपो का लिंक मैं जरूर शेयर करूंगी। वाइपो जो है एक यूएन की एजेंसी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डील करती है। और उसके उसमें आप जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टैब्लिश बिजनेसेस हैं उनके लिए भी, और जो स्टार्टअप्स हैं और नेसेंट बिजनेसेस हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। आई मीन इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल वेबसाइट है उनकी। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, और बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग्स हैं। सो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको ज़रूर फ्रीक्वेंटली विजिट किया करें वाइपो की वेबसाइट। बल्कि मैं आपके पाशा के उस पे मैं शेयर भी कर दूंगी। लेट्स डेवलप नेटवर्किंग और कनेक्शंस। अच्छा, किसी ने कहा कैन वी रजिस्टर एआई प्रोडक्ट एज अ ट्रेड सीक्रेट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। और आमतौर पे जो आपकी ऐसी चीजें जिनको आप पैटर्न नहीं कर सकते क्योंकि एल्गोरिदम्स पैटर्न नहीं हो सकता, तो उनको फिर आप एज अ ट्रेड सीक्रेट ही प्रोटेक्ट करते हैं। आपके कोई ट्रेनिंग डेटास हैं उसको कॉपीराइट करवा लें आप, तो इस तरह से यस ट्रेड सीक्रेट के तौर पर भी हो जाता ठीक ठीक okay ma'am, thank you very much for being here. You have give your precious time and also our participants that they are here and they ask question because this is a debate, as you know, that they are into the industry in the service or a product, so they are facing these kind of problem. So I would like also to thankful to Pasha and especially the startup committee. They give a chance you and the participant and bridge them that how can make their more effective way in their own self and in the Pakistan, and especially thanks to our convener, the startup committee, Mr. Usman Sahab, and also the Pasha secretary, Mr. Tayyab and Mr. Zan. So in the है। end, I would like to just have Mr. Usman about this program. We will end. So Ms. Sama, can you please turn off your यस presentation? That would be great. Oh, that's what I think यस, address. I think very काइंडली great. प्लीज, Just leave it this, यस please, please. yes, you can Sure, sure, sure. note my cell number and my contacts and let's connect with each other. Actually ये बहुत ही एक it's also I was also looking forward to this session क्योंकि पाशा के साथ मुझे पहले भी मुझे वो करना था, अप्रोच करना था इन लोगों को। और स्पेशली आईपी जो प्रोग्राम है उसमें वी आर लुकिंग फॉर ऐसे छोटे बिजनेसेस जो कि आईपी खुद से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, सो दैट हम उनको गाइड कर सकें। सो हमने अंडर दैट प्रोग्राम हमने दो उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है। इट्स न्यू इनिशिएटिव, तो लेट्स जॉइन हैंड। और आप बिल्कुल लिंक्डइन पे और यू कैन कनेक्ट मी ऑन इट। Okay, so Usman could you please जी have some few words on it, please? जी, first of all, तो thank you, Dr. Saima Saab, for sharing insights and
for being so collaborations the IT industry. And I'm sure this today's session is like a new thing for many companies, many startups, and even many established companies because what we often lack is just to file the patent, just to file the trademark, and later तो ये होता कि हम ग्लोबली कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते जस्ट बिकॉज हमारा आईपी कोई नहीं होता और कंपनी की वैल्यूएशन वैसे नहीं होती और कोई रिकग्निशन भी नहीं होती तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर पीपल कैन स्टार्ट फाइलिंग पेटेंट्स आईपी कॉपीराइट और ये जो आईपी है अम्ब्रेला टर्म जो है आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉड पर जो है ना हमें अवेयरनेस सेशन करना चाहिए एंड लेट्स होप के पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे आईपीज और पेटेंट्स और कुछ चीज़ें निकले जो कि हम हमें ग्लोबली जो है ना पोजीशन कर सकें एज एन इनोवेशन हब सो True. थैंक यू वेरी मच Thank you so much. Reggie, okay, thank you very much for all of here. And alhamdulillah, it's about 4 p.m. I thought that is gonna be end up 3:30, but it goes on. Anyway, thank you very much, Sama. Thank you very much, Masha members. Thank you very much, Mr. Usman and थैंक the यू startup team. Thank you very much. And inshallah, in very shortly, we will come up with the next session. Thank you. थैंक Allah यू Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफिज Thank you so much. Love you.